وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم۔ ناظرین، ہمارے آج کے مضمون کا عنوان ہے کر برا ہوگا بھلا۔ حضرات، ہماری زبان کی کچھ کہاوتیں اسکار رفتہ ہو کر ہمارے استعمال میں نہ رہیں اور کچھ کہاوتوں کو لوگوں نے اپنے عمل سے الٹ دیا، جیسے نیکی کر دریا میں ڈال والی کہاوت کو فی زمانہ گندگی کر دریا میں ڈال سے بدل دیا گیا ہے۔ اس سے ہمارے ملک کی دریاؤں کی حالت خراب ہو گئی ہے۔ حکومت کو دریاؤں کی صفائی کی ایک اسکیم تیار کرنی پڑی، جس کے لیے ہزاروں کروڑ کا بجٹ منظور ہوا، لیکن حکومت کے خزانے صاف ہو گئے، دریاؤں کی صفائی نہ ہو سکی۔ اسی طرح کر بھلا ہوگا بھلا کا نعرہ جو ہم اکثر خانقاہوں میں فقیروں کی زبانی سنتے ہیں، اسی فلسفے نے ہمارے سماج کے تانے بانے باندھ رکھے ہیں۔ ایک دوسرے کی مدد کے جذبے سے ہی دنیا نے ترقی کی ہے، مگر پچھلے 5-6 برس میں کر بھلا ہوگا بھلا کا نعرہ بھی برعکس ہو گیا۔ اب یہاں وہ لوگ ترقی پا رہے ہیں جو برائیوں کے مرتکب ہیں یا مسلسل برے اعمال میں ملوث ہیں، مگر پھر بھی ترقی کی منزلیں طے کر رہے ہیں، بلکہ ترقی کی معراج کو بھی پہنچ چکے ہیں۔ خیر، یہ تو سیاست کی شطرنج کے ہاتھی، گھوڑے اور بادشاہ ہوئے۔ اب شطرنج کے پیادے بھی انہی کے نقش قدم پر چل کر بلندیوں کو چھونے میں لگے ہیں، جیسے حیدرآباد کے ایک قائد جنہوں نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز ایک باشعور، پڑھے لکھے اور ذہین سیاستدان کے زیر سایہ شروع کی تھی، مگر اس پارٹی کے صاف ستھرے ماحول میں شاید ان کا دم گھٹنے لگا تو انہوں نے اپنا پیلا چولا اتار کر زعفرانی چولا پہن لیا اور اپنے ناپاک ارادوں اور گھٹیا سیاست کے بلبوتے پر میونسپل کارپوریٹر سے MLA بن گئے اور کر برا ہوگا بھلا کا پھل پا لیا، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ یہ راستہ اپنا کر لوگ اقتدار اعلیٰ اور مرکزی وزارتوں کی کرسیوں تک پہنچ رہے ہیں، اور اس فارمولے کو اپنا کر پارٹی اپنا اور قائدین اپنا مفاد پورے کر رہے ہیں۔ حضرات، دنیا میں لاکھوں کروڑوں ہندوستانی نژاد دنیا کے مختلف ملکوں میں آباد ہیں، اور ہندوستان میں بن رہے حالات کی وجہ سے ملک اور قوم کا جو نقصان ہو رہا ہے سو تو ہے، مگر بین الاقوامی سطح پر ہمارے ملک کا جو وقار مجروح ہو رہا ہے، اس کی بدنامی ہو رہی ہے۔ اس سے ہم NRIs بھی یہاں شرمسار ہوتے ہیں، کیونکہ ہم یہاں ایک کاسموپولیٹن ماحول میں رہتے ہیں، مگر لگتا ہے کہ اس سے BJP یا اس کے اندھے بھکتوں کے کان پر جوں تک نہیں رہی ہے۔ ملک میں ہر طرف وہی بھڑکاؤ بھاشن، بیہودہ نعرے، دنگے فساد پھیلانے کے منصوبے سارے ملک میں افراتفری کا ماحول بنائے ہوئے ہیں۔ کہیں نعرہ بلند ہوتا ہے، دیش کے غداروں کو گولی مارو سالوں کو، اور نام نہاد دیش بھکتوں نے اس نعرے کو سوشل میڈیا کی وساطت سے بین الاقوامی سطح پر مقبول کر دیا، یعنی بدکار اپنی بدکاریوں کی تشہیر بھی کر رہے ہیں۔ شاید بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا کہ اصولوں پر۔ حضرات، یہ تو سب جانتے ہیں کہ غدار کا اشارہ کس طرف ہے، تو آئیے ہم اس پر غور کرتے ہیں کہ غدار کون ہو سکتا ہے یا غدار کسے کہا جانا چاہیے۔ غدار وہ ہے جو اپنے ملک سے بے وفائی کرے، ملک دشمن سرگرمیاں انجام دے، عوام کو دھوکہ دے۔ غور کیجئے کہ ملک اور قوم کے ساتھ کس قائد یا سیاسی پارٹی نے بے وفائی کی، وعدے پورے نہ کیے، دھوکہ دیا، جھوٹ اور غلط بیانی کے ذریعے اقتدار حاصل کیا۔ یہ سارے عمل ثابت کرتے ہیں کہ غدار کون ہے۔ وہ جس نے وعدہ کیا کہ کالا دھن واپس لائیں گے، ہر ہندوستانی کے کھاتے میں 15 لاکھ جمع کرائیں گے، ہر سال 2.5 لاکھ نوکریاں فراہم کریں گے۔ ایسے بہت سے وعدے ہیں جو وفا نہ ہو سکے۔ حکومت کی جانب سے نہ صرف روزگار مہیا نہیں کرایا جا سکا، بلکہ ان کی جانب سے غلط معاشی فیصلوں کی وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں بڑے چھوٹے کاروبار اور صنعتیں بند ہوئیں، لاکھوں کی تعداد میں برسر کار لوگ اپنی ملازمتوں سے محروم ہو گئے۔ پھر اس کے بعد بینکوں کا ڈوبنا، ملک کے کروڑا افراد معاشی طور پر ایسے کمزور یا تباہ ہوئے کہ اب ان کا دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونا دشوار ہو گیا۔ دوسری طرف
समाज के रिवायती एकता के ताने बाने तार तार किए जा रहे हैं। समाज के मुख्तलिफ तबक़ात और मज़ाहिब के बीच दीवारें खड़ी की जा रही हैं। इक़्तिदार और ताकत का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। अब अवाम खुद तय करे कि मुल्क दुश्मन और गद्दार किसे करार दिया जाए। जहाँ तक बैंक के डूबने की बात है तो ऐसा नहीं है कि ये गलत पॉलिसी का नतीजा है, बल्कि इसका खुलासा एक मरतबा आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह ने अपनी खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यस बैंक के डूबने की असल कहानी पेश की थी। इस वाक़े पर उन्होंने एक फहरिस्त पेश की जिसमें मुल्क के 20 अरबपतियों और खरबपतियों के नाम जाहिर किए गए थे, जिन्होंने बैंकों में जमा अवाम के पैसे से हज़ारों करोड़ के कर्ज हासिल किए और नादहिंदा यानी डिफ़ॉल्टर हो गए। संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस इंकशाफ पर ख़त्म हुई कि यस बैंक के इन नादहिंदा अफराद ने बैंक से उठाए ख़र्च की रकम का तकरीबन आधा हिस्सा बीजेपी को पार्टी फ़ंड के तौर पर दे दिया। इस तरह संजय सिंह ने अवाम के सामने ये वाज़े कर दिया कि अवाम मेहनत की कमाई किस तरह देशभक्तों में तकसीम की गई। अब अवाम तय करे कि कौन गद्दार है और किसको गोली मारी जाए। सामीन को याद होगा कि बीजेपी के एक कायद ने बयान दिया था कि हम सब यानी हिंदू हरामजादे हैं और बाकी सब हरामजादे। तो आइए गद्दार की तरह हरामजादे के माने की भी तशरीह करते हैं। हरामजादे नाजायज़ औलाद के अलावा आम तौर पे बदखुमाश, बदकिरदार, शरीर, बिगड़े हुए या नाखलफ औलाद को भी कहा जाता है, जो अपने बुज़ुर्गों, अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, दुनिया में इनको रुस्वा और बदनाम करते हैं। हम देख रहे हैं कि आज मुल्क में हज़ारों नौजवान जो अपने आप को फ़ख्र से रामज़ादे कहते हैं, सड़क पर हथियार उठाए दंदनाते फिरते हैं। दरअसल नफ़रत की आइडियालॉजी में यकीन रखने वाले उसे परवान चढ़ाने का बेड़ा उठाई तंजीम ने इन नौजवान जहनों को मुकद्दर करके अपने पोशीदा एजेंडे यानी समाज में दरारें डालो, नफ़रत फैलाओ, फ़िरक़ा परस्ती का जहर आम करो जैसे मकासद के उसूल के लिए ये लोग नौजवान नस्ल को इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये नौजवान जय श्री राम के नारे बुलंद करते हुए लिंचिंग, दंगे, आगज़नी, क़त्ल व गारतगिरी करते हुए घूम रहे हैं। ये भगवान राम की तालीमात तो नहीं है, यानी राम के भक्त और रामज़ादे सरेआम भगवान राम का नाम बदनाम कर रहे हैं, उन्हें रुस्वा और नाराज़ कर रहे हैं। तो अब बताइए कि हरामज़ादे कौन हुए। किस कदर दुख की बात है कि ये नौजवान जिन्हें अपने ख़ानदान, अपने समाज, अपने मुल्क के लिए अपनी तवानाइयाँ इस्तेमाल करना था, वो तवानाइयाँ मुल्क की तबाही में सर्फ कर रहे हैं। हज़रात, मारूफ क़ानूनदान और रुकने पार्लियामेंट कपिल सिब्बल ने एक दफ़ा ऐवान में नफ़रत के वायरस पर बड़ी पुरअसर तकरीर की थी। इनकी तकरीर काफ़ी तवील थी और जहनों को झंझोड़ती थी और इनके बयान करदा वाक़यात दिलों को दहला देते थे। उन्होंने कहा कि इन दिनों दो ख़तरनाक वायरस हिंदुस्तान में फैले हुए हैं, एक कोरोना वायरस, दूसरा नफ़रत का वायरस। उन्होंने नफ़रत के वायरस के बारे में मज़ीद कहा कि ये वायरस मुल्क में एक मनसूबाबंद तरीक़े से फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नफ़रत का ये वायरस अगर हमारी नौजवान नस्ल के जहन में बैठ गया तो फिर हिंदुस्तान में जमहूरियत बाकी नहीं रहेगी। और आखिरी में मक़बूम लहजे में उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि भाईचारा, मिलजुल कर रहना हिंदुस्तान की सदियों पुरानी रिवायत है, उसे ज़िंदा रहने दीजिए। हमारी तहज़ीब, हमारी रिवायतों को बर्बाद न कीजिए। सामीन को याद होगा कि वज़ीर आज़म ने एक अवामी जलसे में कहा था, हम तो फ़कीर आदमी हैं, झोला लेकर निकल पड़ेंगे। लगता है अब ख़ुद को फ़कीर मनीष कहने वाले को झोला लेकर निकलना पड़ेगा। इसके लिए कर बुरा होगा भला जो आज का नया नारा बन गया है, शिकस्त देना होगा और आवाम को फिर से फ़कीरों वाला नारा कर भला होगा भला पूरी ताकत से बुलंद करना होगा, ताकि नाम नहाद फ़कीर अपना झोला उठाए और निकल पड़े। कर भला होगा भला, कर भला होगा भला। वसीला उर्दू टीवी की खुसूसी पेशकश
तज्जियाती मज़ामीन पर मुश्तमिल हफ्तेवार प्रोग्राम जामे जम। ईरान अमेरिका तसादुम की राह पर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हिज़ियानी कैफियत का शिकार हैं। इस वक्त मुल्क में सदारती इंतखाबात 3 नवंबर को होने हैं। सदर ट्रंप रिपब्लिकन उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं, जबकि जो बाइडेन डेमोक्रेटिक उम्मीदवार की हैसियत से ट्रंप के मद्दे मुकाबिल हैं। अपनी इंतखाबी शिकस्त को देखते हुए ट्रंप ईरान से छेड़खानी करते हुए अमरीकी अवाम को ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं, जो तासुर अमरीकी अवाम को 2003 में इराक के खिलाफ हमले के जरिए बुश ने देने की कोशिश की थी। बुश ने इराक के खिलाफ अवामी तबाही के हथियार होने का जहर उगल कर इराक पर हमला करते हुए सद्दाम हुसैन की हुकूमत और उनकी शख्सियत का खात्मा कर दिया। उसी तर्ज पर ट्रंप ईरानी मिसाइल की तबाही और दहशत गर्दी को हवा देने वाली हुकूमत को खत्म करने का जवाब पेश कर रहे हैं। अमरीकी हुक्मरानों का ये अमल इस बात की गम्माजी करता है कि वो हमेशा किसी एक मुल्क को अपने हदफ पर रखते हुए अपने सियासी व माशी मकासद को हासिल करने की कोशिश करते हैं। ईरान रकबे के लिहाज से मगरबी एशिया का दूसरा बड़ा मुल्क और आबादी के एतबार से मगरबी एशिया का पहला और दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है। ये दुनिया का पहला मुल्क है जहां 1908 में पहल तेल निकला था। आज ये दुनिया का चौथा तेल के जखायर रखने वाला मुल्क है। 1935 से कबल उसका नाम फारस था। ईरान में अमरीकी मफादात की तारीख का आगाज 1953 से होता है, जबकि जमहूरी तौर पर मुंतखब वजीर आजम डॉक्टर मोहम्मद मिसदाक के खिलाफ फौजी बगावत CIA ने करवाई थी, ताकि रजा शाह पहलवी आहनी हुक्मरान के तौर पर उभर सके और अमेरिका ईरान में अपने मफादात को मुस्तहकम कर सके। उसके बाद 11 फरवरी 1969 में आए इस्लामी इनकलाब तक अमेरिका के कदम मजबूत जमे थे। इस्लामी इनकलाब दरअसल रजा शाह पहलवी से ज्यादा ईरान में अमेरिकी इस्तेहकाम और तरक्की के नाम पर पैदा होने वाली गैर इस्लामी और बढ़ती बेहयाई के खिलाफ आवाज एहतजाज थी। रजा शाह पहलवी ने बतदरीज ईरानी माशरे को मगरबी मिजाज में ढालना शुरू कर दिया था। चुनाचे शाह ने नाफिजा शरई कवानीन की जगह गैर शरई कवानीन का निफाज करते हुए समाज को मुकम्मल सेकुलर खतूत पर डाल दिया था, जबकि ईरानी समाज में मजहब का उनसर ज्यादा है, जिसकी वजह से इनकलाब नागुजीर था। इनकलाब के 9 माह बाद ही 4 नवंबर 1969 को इस्लाम पसंद इनकलाबी तलबा की तंजीम तेहरान में अमरीकी सिफारत खाने का मुहासिरा करते हुए सिफारत खाने के अमले और अमरीकी शहरियों को इल्गमाल बना लिया था। ये मुहासरा 444 दिन तक जारी रहा। उस दौरान इल्गमालियों को रिहा कराने की कोई भी कोशिश कामयाब न हो सकी। इनकलाब के बाद सदर जिम्मी कार्टर ने तेहरान को दिए गए अपने पैगाम में खुमैनी को मुबारकबाद देते हुए कहा था कि अमेरिका ने ईरान में किस तरह की हुकूमत हो इसका तयन कभी नहीं किया था। इसके बावजूद इनकलाब के बाद से आज तक अमेरिका और ईरान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात नहीं है। दोनों मुल्कों में एक दूसरे के सिफारत खाने बंद पड़े हैं। ईरान में अमरीकी मफादात को स्विट्जरलैंड देख रहा है और अमेरिका में ईरानी मफादात को पाकिस्तान देख रहा है। ईरान के खिलाफ अमरीकी तहदीदात की तारीख का आगाज अमरीकी सिफारत खाना तेहरान के मुआसरे और अमरीकी शहरियों को इल्गमाल बनाने से होता है। चुनाचे सदर कार्टर के हुक्मनामे के जरिए पाबंदियां आयद की गयी और अमेरिका में तमाम ईरानी असासात, बैंक डिपॉजिट, सोना और जायदादों को जिनकी मालियत $12,000 बिलियन थी मुंजमद कर दी गई, जिसे बिल आखिर 1981 में तय पाए अल्जेरिस मुआहदे के बाद हटा लिया गया। यह कमाल भी उसी मुआहदे के नतीजे में रिहा हुए थे। इस मुआहदे के 2 अहम निकात के मुताबिक अमेरिका ईरान के दाखिली उमूर में मुदाखलत नहीं करेगा और ईरान के मुंजमद असासों को जारी करेगा। अमरीकी इदारों को दिए गए कर्जों की वापसी से भी इत्तेफाक किया गया। इराक के साथ जंग
के दौरान ईरान पर तमाम अमरीकी इमदाद और तिजारत पर रोक लगा दी गई। सदर रेगन ने तीसरी पाबंदी दिसंबर 2006 में सलामती काउंसिल की करारदाद 1737 की अदम इताअत के खिलाफ लगाई गई थी, जिसमें ईरान ने यूरेनियम की अफजूदगी के प्रोग्राम से इज्तिनाब के लिए किया था। ईरान का यह इस्तेदलाल था कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम शहरी मकासद खुसूसन बिजली और तिब्बी जरूरियात के लिए है। इन तहदीदात को मुसलसल आगे बढ़ाया जाता रहा, जिसे बिलाखिर जनवरी 2016 को हटा लिया गया और इन तहदीदात से ईरान की मईशत बुरी तरह मुतासिर हुई। बेरोजगारी में शदीद इजाफा हुआ, अशियाए खुर्दो नोश के लिए तवील कतारें और डॉलर के मुकाबले में ईरानी रियाल की कीमत अकल तरीन सतह पर आ गई और सबसे ज्यादा असर तेल की कीमत पर पड़ा। इन तहदीदात के नतीजे में तेल की बरामदात जो 2018 में योमिया 2.5 मिलियन बैरल थी, 2020 में गिरकर योमिया 2,54,000 बैरल रह गई। 4 जुलाई 2015 को ईरान ने सलामती काउंसिल के 5 मुस्तकिल अराकीन और जर्मनी और यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर अपनी न्यूक्लियर सरगर्मियों को महदूद करने से मुताल्लिक एक मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसे मुश्तरका जामे मंसूबा बराए अमल जॉइंट कम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA का नाम दिया गया। ये 159 सफ़हात पर मुश्तमिल मुआहदा वियना में तय पाया था। इस मुआहदे के जरिए ईरान ने इस बात से इत्तेफाक किया कि वो अफजूद करदा यूरेनियम एनरिच यूरेनियम जखीरे को 98% घटा देगा और मरकज गुरेज गैस सेंट्रीफ्यूज गैस को 13 साल तक घटाता रहेगा और आइंदा 15 बरसों तक यूरेनियम की अफजूदगी सिर्फ 3.78% रहेगी। इसके अलावा ईरान इस बात पर भी रजामंद हुआ कि भारी पानी हेवी वाटर D2O की सहूलतें भी कायम नहीं करेगा और आइंदा 15 बरस तक इस मुआहदे के अक्टूबर 2025 में खत्म होने के बावजूद भी IAEA बैनुल-अक़वामी तवानाई अथॉरिटी ईरान की न्यूक्लियर सहूलतों का मुआयना करता रहेगा। चुनांचे IAEA अब तक 3000 मुआयने करते हुए ईरान की जानिब से 2015 की पाबंदी की तौसीख कर चुका है। ताहम 30 अप्रैल 2018 को अमेरिका और इसराइल ने दूर की कौड़ी लाते हुए दुनिया को याद दिलाया कि ईरान ने माजी में तैयार किए गए न्यूक्लियर हथियारों की तैयारी से वाकिफ नहीं करवाया है। ये दरअसल मुआहदे से निकलने की अमेरिका की शातिराना हिकमत अमली थी। ईरान ने 2015 से 2017 तक 4 शहाब और 3 बैलिस्टिक मिसाइल के तजुर्बात किए जो 2000 किलोमीटर तक वार कर सकते हैं। चुनाचे 8 मई 2018 को अमेरिका ने 2015 के JCPOA से अलहदगी का ऐलान किया तो यूरोपियन यूनियन ने 7 अगस्त 2018 को ईरान पर आयद तहदीदात को खत्म करने का ऐलान किया, जबकि नवंबर 2018 में अमेरिका ने ईरान पर फिर से तहदीदात आयद करने का ऐलान किया। अमेरिका के मुताबिक ईरान मुजाहिदीन को इमदाद दे रहा है और बैलिस्टिक मिसाइल की तैयारी में मसरूफ है। 8 मई 2019 को सदर हसन रूहानी ने 2015 मुआहदे की पाबंदियों से निकल जाने का ऐलान किया तो अमेरिका ने ईरान पर नई तहदीदात आयद करने का ऐलान किया। तहदीदात से निपटने के लिए यूरोप ने ईरानी तेल का तबादला दूसरी अशिया के जरिए करवाने का ऐलान किया, ताहम ये नाकाम हुआ। गुज़िश्ता 4 शुबे को हसन रूहानी ने ऐलान किया कि उनका पैमाने सब्र लबरेज होता जा रहा है। हमने जो रास्ता चुना वो जंग का नहीं बल्कि जमहूरियत, सिफारतकारी, नई जबान और नई मंतिक का है। इसके अलावा उन्होंने यूरोपीय कायदीन से कहा कि मुआहदे को मुकम्मल खत्म किया जाए या अमेरिका को छोड़कर ईरान के साथ हो जाए। अगर वो ईरान को छोड़ देते हैं तो ईरान मजीद इनकलाबी कदम उठाएगा। 5 जनवरी 2020 को बगदाद एयरपोर्ट पर ईरान के रूहानी रहनुमा इस्माइल कामिनी, उनके दस्ते-राज जनरल कासिम सुलेमानी पर अमेरिका ने कातिलाना हमला करते हुए उन्हें शहीद कर दिया। इस अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान ने 2015 के मुआहदे की पाबंदी न करने का ऐलान कर दिया। अमेरिका और ईरान के दरमियान ताज़ा तनाज़ात का आगाज उस वक्त से हुआ जबकि ईरान ने इराक में 8 जनवरी 2020 को 2 अमेरिकी फौजी अड्डों पर अपने सिपाही पासदाराने इनकलाब बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए हमला करते हुए 80 अमेरिकी फौजियों को मौत के घाट उतारा और दीगर 20 को जख्मी कर दिया। अमेरिकी इंतखाबी साल में यह जानी नुकसान ट्रंप के लिए जबरदस्त असरअंदाज हुआ।
चुनाचे ईरान पर ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाने के लिए 20 सितंबर को अमेरिकी सेक्रेटरी खारिजा माइक पोम्पियो ने ऐलान किया कि अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की तहदीदात को दोबारा नाफिज किया है और अमेरिका उम्मीद करता है कि तमाम अराकीन तहदीदात पर अमल करेंगे। अमल न करने वाले मुल्क को अक़वाम मुत्तहिदा के फ़वाइद से महरूम कर दिया जाएगा। दूसरे ममालिक ने कहा कि अमेरिका साल 2018 में JCPOA से इनफरादी तौर पर अलहदगी के बाद अब वो किस तरह पीछे से तहदीदात आयद कर सकता है, जबकि सलामती काउंसिल ने पहले ही तहदीदात को आयद करने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। ऐसे में अमरीकी इक़दाम को हट धर्मी ही कहा जा सकता है। ट्रंप को अगर इस इंतखाब में जीत हासिल हुई तो वो इराक की 2003 की तारीख को ईरान में दोहराना चाहेगा। हम सिर्फ गालिब के इस शेर को दोहराना चाहेंगे, बेसबब हुआ गालिब दुश्मन आसमां अपना। वसीला उर्दू टीवी की खुसूसी पेशकश तज्जियाती मज़ामीन पर मुश्तमिल हफ्तेवार प्रोग्राम जामे जम।